Good morning students, welcome you all to our ICT class. Your first chapter is about information threat and security. Here we study about what is information, what is threat and security, and what are the security we use to prevent our data or information in our computer system. Okay, let's start. Your first chapter is information threat and security. Here we study about introduction of threats, types of threats, how threats spread, cybercrime, what is cybercrime, computer ethics, information security, etc. Okay, now start. Information threats and security. All of you know what is information. Information is our processed data. Your first chapter is information threat and security. Now information is a very valuable asset, because information means what? The processed data. Whatever the data we have or whatever the information we have, we must secure that. That means no one should access that data or our information without our permission. So nowadays it is very essential to protect our information. Okay, there are number of reasons or cause occur which damage our data or information. Threat in the context of computer security refers to anything that has the potential to cause serious harm to a computer system. Now threat means what? Any threat means threat is also a computer program. Threat is a computer program. That program which cause serious harm to a computer system is called threat. That means जो भी प्रोग्राम हो, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो, अगर वो हमारे कंप्यूटर को कुछ नुकसान पहुंचाता है या हार्म पहुंचाता है तो उसे हम थ्रेट कहेंगे. ओके, ए थ्रेट इज समटाइम्स that may or may not occur but has the potential to cause serious damage. Threat is something. Threat is a program that may or may not happen. That means that may damage your computer system, may not damage your computer system, but it has the potential to cause serious damage. लेकिन इसका क्या होगा? उसका कैपेबिलिटी है तुम्हारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सके. ओके, and threats are of two types. That means one is your intentional, another one is your accidental. Intentional means जो थ्रेट को हम जानबूझ के बनाते हैं. अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम और या वायरस तुम बोलते हो, जैसे तुम्हें ये वायरस वर्ड के साथ तुम ऑल एक्वेंटेड हो, वैसे ही अगर कोई आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है ये नज़र में रखते हुए कि किसी का नुकसान करे, तो उसे बोलते हैं हम इंटेंशनल थ्रेट. और एक्सीडेंटल क्या है? जैसे तुम्हारा कोई अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, इसमें क्या होता है? तुम्हारा डाटा भी लॉस होता है, कंप्यूटर सिस्टम जल जाता है या कुछ नुकसान होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सीडेंटल. ओके, इट इज थ्रेट इज आइदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, या फिर उसे जानबूझ के बनाया गया है या वो गलती से बन गया है. देन टाइप्स ऑफ थ्रेट. थ्रेट का टाइप क्या है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. वन इज योर मैलवेयर, जैसे लाइक वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पूफिंग, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, स्पैम, फिशिंग, एक्सेट्रा. ओके, नाउ malware. Malware is the short form of malicious software. What is malware? Malware is the short form of malicious software. It is a program. Malware is a program or a file that developed for the purpose of doing harm. इसे क्यों बनाया गया है? किसी का हार्म करने के लिए, पर्पज ऑफ डूइंग हार्म, इसीलिए उसे डेवलप किया गया. तो ये कौन सा किस कैटेगरी में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंशनल थ्रेट. इंटेंशनल क्योंकि इसे जानबूझ के बनाया गया है हार्म पहुंचाने के लिए. It includes computer virus, worm, Trojan horse, spyware, hijacker, certain types of adwares.
malware any kind of unwanted software. Malware is any kind of unwanted software that is installed without your adequate consent. तुम्हारा परमिशन के बिना ये क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा. इसे बोलते हैं मालवेयर. ओके, इट इज योर मालवेयर. के बाद तुम्हारा आ गया क्या, वायरस. वायरस क्या है, क्या आ गया, वायरस. वायरस क्या है, वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज. इट स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज. ओके, सब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज. ओके, virus is a program or set of programs that disrupts the normal operation of the computer system. It is a program or set of program that disrupts the normal operation of your computer system. It enter into the computer without permission or knowledge of user. It enters into the computer without permission or knowledge of the user. That means virus क्या हो गया, the full form virus is vital information resource undersized. ये एग्जाम में आता है तुम्हारा, the full form of virus and what is virus. Full form is vital information resource undersized and virus is a program or set of program that disrupts the normal operation of the computer system. क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम में जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, जो भी काम होता है, उसे क्या करेगा, वो डिसरप्ट करेगा, उसे वो ठीक से काम करने नहीं देगा. ये काम है वायरस का. और ये तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे एंटर करेगा, तो विदाउट योर परमिशन, तुम्हारे जानकारी के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाएगा. एंड वायरस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर बूट सेक्टर वायरस, one is your boot sector virus, another one is your file virus. One is your boot sector virus, another one is your file virus. ओके, अभी देखेंगे बूट सेक्टर वायरस क्या है. ए बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव. ए बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर हार्ड ड्राइव where the master boot record is stored. तुम्हारा जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड ड्राइव, उसका फर्स्ट सेक्टर को इन्फेक्ट करेगा क्या, बूट सेक्टर वायरस. ओके, देन आ गया तुम्हारा फाइल वायरस. सम फाइल्स और प्रोग्राम्स व्हेन एग्जीक्यूटेड लोड द वायरस इन द मेमोरी एंड परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शन टू इन्फेक्ट द सिस्टम. सम फाइल और प्रोग्राम, पहले मैं बोल चुका हूँ, virus is a one type of program. Okay, some files or programs when executed, जैसे तुम्हारा कोई फाइल हो या कोई प्रोग्राम हो, जैसे तुम ओपन करते हो या पेन ड्राइव से कुछ फाइल लाके तुम ओपन करते हो, उस टाइम क्या होता है, ये जो वायरस होता है तुम्हारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाता है, उसी के साथ ही लोड हो जाए. जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स है या कुछ प्रोग्राम है या कुछ फ़ोटो है या कुछ वीडियोज है. अगर हम क्या करेंगे, उसे पेन ड्राइव से वो जो फोटो या वीडियो को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, तभी क्या होता है, उसके साथ वही हमारे जो वीडियो या फोटो के साथ वो क्या होता है, ये जो फाइल वायरस क्या होता है, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है. फिर क्या होता है, वो जो वायरस जिस मकसद से उसे बनाया गया है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है without our knowledge. This virus infects .exe files, .com, .bin, .drb and .sys files. Okay, then Trojan horse. Okay, Trojan horse क्या है. Trojan horse is a program that acts as a malicious or harmful code. Trojan horse is a program that acts as a malicious or harmful code. It designed to cause some malicious activity or to provide a backdoor to your computer system.
ट्रोजन हॉर्स हैव नो वे टू रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है देखो, बाकी जो वायरस होता है क्या होता है, वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होते हैं और अपना अपना एक एक कॉपी ऑटोमेटिक बनाते जाते हैं इन ऑर्डर टू स्प्रेड, बट इन ट्रोजन हॉर्स दे नेवर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट। मीन्स ये जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो ऑटोमेटिकली अपना कॉपी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कॉपी नहीं बनाता है तो क्या ऐसे ये कैसे काम करता है कि ये डायरेक्टली तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, फैसिलिटी देगा तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म बनाने के लिए। ये डिजाइन टू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये डिजाइन टू कॉज सम malicious activity or provide a backdoor to your system. That means provide a backdoor entry to your system. Okay, that means for take an example, if you use Wi-Fi, if you use Wi-Fi router to connect your mobile phone, laptop, PC वगैरह वगैरह, okay, if the Trojan horse virus is affected to your network or Wi-Fi network, then what is do, it give the accessibility permission to the hackers. That means if Trojan horse affect to your Wi-Fi network, then the hackers may access your Wi-Fi network in order to use your network and do some harm to your network or to your computer system. Okay, the examples are base, rat, netboss, girlfriend, etc. These are the example of Trojan horse virus. आया समझ में? Note here the first PC virus was a boot sector virus. First virus was a boot sector virus. Boot sector means it affect the first sector of the hard drive. Okay, boot sector virus name is brain virus, and it was released in the year 1987 by Alvey brothers. Okay, by Alvey brothers. Okay, they are from Lahore, Pakistan. Other popular viruses are Jerusalem and Israeli, Ping Pong, Dark Avenger. These are the another popular viruses. Then worm. A computer worm is a standalone malware. It is a standalone malware computer program that replicate itself. Very important. It replicates itself in order to spread to other computers. What? A computer worm. What is worm? A computer worm is a standalone malware. It is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other okay. A computer worm is a standalone malware computer program. It is a standalone that replicates itself. Very important. Always in exam it is asked that which malware replicate itself. Answer is worm replicate itself in order to spread to other computers. That means it replicate means it make its own copy. सपोज एक worm आ गया तुम्हारे कंप्यूटर में, वो अपना क्या करेगा, 3, 4, 8, 10 अपना अपना एक एक कॉपी खुद बनाता जाएगा. Often it uses a computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access it. For example of worm. What are the example of worm? One is your Brontok, then CodeRed, then MyDoom. There are 3 examples. One is your Brontok, CodeRed, and MyDoom. Okay. First is your spread Brontok. Brontok spread through an Indonesian email headed. It is first spread through an Indonesian email headed stop collapse in this country. Stop collapse in this country. Brontok कैसे स्प्रेड हुआ था? फर्स्ट इंडोनेशियन ईमेल
एक इंडोनेशियन ईमेल थ्रो इंडोनेशियन ईमेल हेडेड विथ स्टॉप द कोलैप्स इन दिस कंट्री। दैट मीन्स अगर ये ब्रोनटेक आ गया तो ये कहाँ से आता है, ईमेल के थ्रू, और वहाँ पे क्या हेड जो ईमेल तुम्हें आएगा उसमें एक हेड होता है या फिर सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे क्या लिखा होगा, स्टॉप द कोलैप्स इन दिस कंट्री लिख के ये ब्रोनटेक आया था। और ये क्या किया था, डिस्ट्रॉय द फायरवॉल्स, जो हमारा जो फायरवॉल्स मीन्स आवर सिक्योरिटी वॉल्स इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। फायरवॉल्स आर द सिक्योरिटी वॉल्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या किया था ब्रोनटेक, जो सिक्योरिटी वॉल्स था हमारा, जो सिक्योरिटी वॉल यानी जो फायरवॉल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके द्वारा क्या होता है, बाहर से वायरस हमें आसानी से हमारे सिस्टम को अटैक कर सकता है। ओके, देन योर कोड रेड, दिस वर्म अलाउज हैकर्स टू हैक योर कंप्यूटर कंप्लीट नेटवर्क फ्रॉम द लोकेशन। दिस infection allows hackers to steal data like credit card, password and other personal information. What is code red? Code red is a worm allows hackers to hack your complete network. It allows hackers to hack your complete network. Code red allows the hackers to hack your कंप्लीट नेटवर्क। तुम्हारा जो कंप्लीट नेटवर्क होता है, कंप्लीट नेटवर्क को हैक कर दिया। कंप्लीट नेटवर्क मीन्स जो इंटरनेट तुम यूज करते हो, तुम जो इंटरनेट यूज करते हो, अगर तुम्हारा कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो इंटरनेट के साथ यूज है तो तुम्हारा इंटरनेट को या तुम्हारा नेटवर्क को वो कम्प्लीटली हैक कर लेगा। फिर फ्रॉम एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन से वो हैक कर सकते हैं। हैक करने से क्या होगा, दे कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। Information like your credit card number, your password, your personal information, etc. they can steal. Okay, that is the code red. And third one is your MyDoom. MyDoom is the fastest spreading email worm. Fastest spreading email worm. It is the fastest spreading email worm. एग्जाम में आता है name the malware which is the fastest spreading email worm. Name is MyDoom. Okay, then spyware. then आ गया spyware. हम जानेंगे spyware क्या होता है। spyware क्या होता है, it is software that secretly collects users information while on internet. Spyware can capture information like web browsing habits, email messages, username, password and credit card information. Spyware does not necessarily spread in the same way as virus or worm. Okay, देखो spyware, spy means क्या है, spy तो सबको पता है, spyware that means it can do, spy क्या करते हैं, वो छुप के सारा काम करते हैं। इसलिए ऐसे ही spyware is the malware which secretly collect user information while on internet. सपोज तुम अभी इंटरनेट यूज कर रहे हो, तुम इंटरनेट में कुछ भी सर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे सिस्टम में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया है तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो कंप्यूटर का जो भी डाटा होगा सारे डाटा को वो हैक कर लेंगे या फिर चुरा के ले जाएंगे। ओके, विदाउट योर नॉलेज, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम अपने आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वो क्या करेंगे, स्पाईवेयर के थ्रू तुम्हारा डाटा और इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे। जैसे कि वो क्या क्या कैप्चर करता है, जैसे लाइक योर वेब ब्राउजिंग हैबिट्स, तुम क्या क्या ब्राउज करते हो कंप्यूटर में, योर ईमेल मैसेजेस, तुम्हारे ईमेल में क्या क्या मैसेज है, तुम्हारा यूजर नेम, तुम्हारा पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई तुम्हारा वेब ब्राउजिंग हैबिट्स, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को चुरा के ले जाएगा तो ये कितना डेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए, सोचो। सो स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर व्हिच सीक्रेटली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन व्हाइल ऑन इंटरनेट। जैसे तुम इंटरनेट में कनेक्ट होते हो, ये सीक्रेटली इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। लाइक ये क्या क्या कैप्चर करता है, योर वेब ब्राउजिंग हैबिट्स, ईमेल मैसेजेस, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल की लॉगर ऑल्सो कॉल्ड ए की स्ट्रोक लॉगर। की लॉगर और की स्ट्रोक लॉगर
or key logger or system monitor is a hardware device or small program that monitor each keystroke a user type. की लॉगर और की स्ट्रोक लॉगर, देखो की लॉगर और की स्ट्रोक लॉगर क्या होता है, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस और ए स्मॉल प्रोग्राम. इट मे बी ए मे आइदर इट इज ए हार्डवेयर और मे बी ए स्मॉल प्रोग्राम. ये क्या होता है, जो की लॉगर होता है ये एक हार्डवेयर हो सकता है या एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. ये क्या करता है, इट मॉनिटर्स ईच की स्ट्रोक ए यूजर टाइप्स. तुम जो भी करोगे वो की को क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा और या फिर मॉनिटर कर लेगा. इस टाइप का की लॉगर जो है, ये टाइप का वायरस मैक्सिमम देखोगे तुम बाहर से अगर कोई कंप्यूटर एक्सेस करते हो, जैसे साइबर कैफ़े में, वहाँ पे मैक्सिमम ये की लॉगर होता है. क्योंकि अगर वहाँ से तुम कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या कुछ भी करते हो, वहाँ पे तुम यूज़र आईडी देते हो और पासवर्ड देते हो. ये क्या करेगा, तुम जैसे ही कीबोर्ड में कुछ अपना यूज़र आईडी टाइप करोगे और पासवर्ड टाइप करोगे, ये उसे कैप्चर कर लेगा. कैप्चर करने के बाद क्या होगा, वो फिर तुम्हारा जो इंटरनेट बैंकिंग हो, जो भी अकाउंट हो, वो खुद एक्सेस कर सकते हैं. इसीलिए जब भी तुम कभी भी बाहर से कुछ भी आईडी पासवर्ड दे के कुछ भी एक्सेस करते हो, पहले सिक्योर हो जाना है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है. ओके, दिस इज योर स्पाईवेयर एंड कीलॉगर. ओके, नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट हार्डवेयर. ओके, समझ में आ गया? अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे चैट में मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो. अगर कोई भी पार्ट्स या कोई भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज करो. ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.